students, good morning. So we are continuing our chapter number 8, class and objects in Java. In the last session we have learned about the inheritance, that how inheritance works, how two classes working together. Now our next topic is private members of superclass. In the previous example, all instances have package visibility. So they are available for direct use in the entire package. If we try to access r1.length or cr1.width directly in main method, there will not be any error. If we change the visibility of instance variable of superclass to private, these variables are not directly accessible outside the class. हमने लास्ट टाइम देखा कि जितने भी हमने वेरिएबल्स यूज किए थे, इंस्टेंस वेरिएबल यूज किए थे, तो उसको पैकेज यूज करते थे, जिसकी वजह से आप कहीं पे भी दूसरे क्लास में आप एक्सेस करना चाहो तो कर सकते थे। मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे कोई एरर नहीं आती थी। लेकिन अगर आप उसको प्राइवेट डिक्लेयर करते हो किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल को, तो वहां पे डायरेक्टली एक्सेस दूसरे किसी क्लास में आप नहीं कर पाओगे। Remember that these attributes belong to subclass also, but still private instance variable or methods are not visible even in subclass. Modify declaration of instance variable in code listing 8.2. Make them private as follows and observe an error output shown in figure 8.6. For example, private float length, width, height, then private byte and windows. अगर आप इसको प्राइवेट विजिबिलिटी दे देते हो तो क्या होता है, देखिए जैसे मेन प्रोग्राम में हम इसको कंपाइल करवाएंगे हमारे सामने एरर आएगी। क्या एरर आएगी? इनहेरिटेंस हमने बनाया तो है, बट लैंड हैज प्राइवेट एक्सेस इन रूम। इट मीन्स हम मेन मेथड में अगर इसको यूज करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके अंदर ये एरर आ रही है। और विड्थ भी नहीं, क्योंकि दोनों को हमने क्या कर दिया, लैंड विड्थ हाइट सबको क्या कर दिया, प्राइवेट विजिबिलिटी दे दी। और प्राइवेट विजिबिलिटी होने की वजह से वो उसके सब क्लास जो हमने बनाए, इनहेरिटेंस अगर आप यूज भी कर रहे हो फिर भी आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। Remember that private members are directly available only in the class which they are defined and modified and nowhere else. To make them available elsewhere, use public access and mutator methods, getter and setter methods. जो मैंने लास्ट एक getter and access and mutator method का जो वीडियो है उसमें समझाया बहुत अच्छे से कि किस तरह से get और set का यूज करके आप प्राइवेट विजिबिलिटी देने वाले जो है वेरिएबल्स उसको भी आप यूज कर सकते हो। Next is protected members of superclass. As studied before in the topic about visibility modifiers, protected members are also available as private members in the inherited subclass. Modify the instance variable of classroom to protected as follows. First one, protected float length, width, height, then protected byte and windows. When we execute the modified code, we will get the same result as shown figure 8.15. It is be noted that Java does not support multiple inheritance. A subclass can be derived from only one superclass. कोई भी एक superclass आपने यूज किया उसी के ऊपर होगा। तो मल्टीपल अगर आप यूज करना चाहोगे इनहेरिटेंस तो वो उसको यूज नहीं करने देगा। चलिए ये पार्ट था इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट और रिलेशनशिप कंसेप्ट देखते हैं हम, कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। Composition and aggregations are the construction of classes that incorporate other objects. They are established as has a relationship between classes. Classes के बीच में इसमें कौन सा relationship होगा? Has a relationship होगा। देखिए, for example, if we define the class library, it has a reading room. Here, reading room is an object of the room. Thus, library has a room when a class includes object of other class. It also referred to as a container class. Other examples are, for example, person has a name, address. Here name is the other class name with the three attributes, first name, middle name, last name. Address is class address with attributes of house number, apartment, society, name, area, city, state, country, pin code. Then कार की बात करें तो कार में क्या क्या हो सकता है, तो भाई क्या क्या रिलेशनशिप है। तो फॉर एग्जांपल कार हैज अ स्टीयरिंग, व्हील्स एंड इंजन। हियर स्टीयरिंग इज द is of the class steering, wheel is the of the class wheel and engine is the class of engine. All the three attributes of class car are components of part of a car. Let us create class library. चलिए लाइब्रेरी वाला का एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्लास हमने रूम वाला बनाया था तो लाइब्रेरी का भी रूम हो जाएगा, तो उसमें भी ये सब फॉलोड होगा। अब उसके बीच में और जो हमारा मेन क्लास है उसके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप हैजे का होगा, यानी कंपोजिशन और एग्रीगेशन पार्ट होगा, वो देखते हैं। चलिए पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे उसमें क्या क्या वेरिएबल्स हम लेने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल एन बुक्स, तो उसको आईएनटी डेटा टाइप देने वाला है। इट्स अ नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी।
Then and magazines, it's a number of magazines subscribed in library. Then and newspaper, it's a number of newspaper subscribed in library. And reading room, जो हमारा रूम का जो होगा जिसके अंदर लैंथ, विड्थ, हाइट और एरिया हमने फाइंड किया, वो पार्ट हमारा इसके अंदर आ जाएगा और इसके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होगी. See, the reading room is not the basic data type, it is the type of room class. कोड लिस्टिंग 8.5 देखेंगे किस तरह से उसके अंदर वर्क होता है. तो सबसे पहले तो ये तो आपको पता है, ये अब तो कॉमन हो चुका है आपके लिए कि रूम तैयार करेंगे क्लास का, जिसमें प्रोटेक्टेड यूज करके, फ्लोट डेटा टाइप यूज करके, लैंथ, विड्थ, हाइट लिया है, उस पर बाइट एंड विंडोज लिया है और स्टैटिक आईएनटी यूज करके टोटल विंडोज लिया है. अब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के तौर पे हमने रूम को यूज किया है. नाउ जो पहले बना था वैसा ही एल, डब्ल्यू, एच और एन यूज किया. एल फॉर द लैंथ, डब्ल्यू फॉर द विड्थ, एच फॉर द हाइट, एन विंडोज इज इक्वल टू एन एंड टोटल विंडोज प्लस इज इक्वल टू एन. ये जो प्लस है वो क्या आपको पता है ना, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स है. दैट मीन्स टोटल विंडोज इज इक्वल टू टोटल विंडो प्लस एन, इस तरह से होता है उसके अंदर. देन रूम फिर से बना जिसमें एल, डब्ल्यू यूज किया, जिसमें लैंथ, विड्थ और बाकी जो पार्ट है उसको ऑलरेडी हमने वैल्यूज दे दी और टोटल विंडो को इंक्रीमेंट दिया है. नाउ एरिया के लिए मेथड, एरिया मेथड तो बहुत इजी है, लैंथ इंटू विड्थ की वैल्यू रिटर्न करवानी है. और लास्ट में एक और मेथड बनाई थी हमने डिस्प्ले की, जिसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके लैंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज की वैल्यू 1 by 1 हम प्रिंट करवाएंगे और लास्ट में एंड हो जाएगा हमारा. तो चलिए एक रूम हमारा जो है, एक क्लास जो है हमारा तैयार हो गया. अब दूसरा क्लास जो बना रहे वो है लाइब्रेरी का. अब उसके बीच में किस तरह से रिलेशनशिप होगा, पहले बनाते हैं क्लास लाइब्रेरी, जिसके अंदर आईएनटी क्या 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 उसमें लेना है. तो एक तो एन बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, देन एन मैगजीन्स, देन एन न्यूज़पेपर मीन्स नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, देन रूम, रीडिंग रूम. अब लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, लाइब्रेरी जो हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज किया. अब लाइब्रेरी के अंदर जो है एन बुक्स के लिए एन बी, नंबर ऑफ मैगजीन्स के लिए एन एम, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर के लिए एन एन और रूम आर यूज किया, जो रीडिंग रूम के लिए हमारा यूज होने वाला है. व्हाइट डिस्प्ले के अंदर ये क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, नंबर ऑफ मैगजीन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर कितने है और रीडिंग रूम जो है उसका और रीडिंग रूम का जो डिस्प्ले है वो करवाएंगे, यानी कि उसके लैंथ, विड्थ, हाइट ये सब हमारे सामने आ जाएगा. तो डिस्प्ले मेथड के अंदर हम सेट करेंगे. चलिए यहाँ पे दो क्लास हमको मिल गए, एक क्लास का नाम है रूम, दूसरे का नाम है लाइब्रेरी. अब इसके बीच में मेन मेथड के अंदर हम इसको यूज करने वाले हैं. हमारा जो मेन मेथड बनने वाला है, जो मेन प्रोग्राम बनने वाला है, उसको नाम दिया है कंटेनर, यानी क्लास कंटेनर. उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होगा, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स होगा हमारा, जिसमें रूम R1 यूज करके, जिसके अंदर हम यूज करेंगे न्यू रूम, जिसके अंदर रूम 20, 15, 10 और बाइट 2 यानी लैंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज की वैल्यू दे दी. R1 डॉट डिस्प्ले करवाएंगे, हमें पूरा आउटपुट मिल जाएगा उसके अंदर, यानी लैंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू, हाइट की वैल्यू और नंबर ऑफ विंडोज मिल जाएगा. फिर लाइब्रेरी को कंस्ट्रक्टर के तौर पे यूज किया, क्योंकि लाइब्रेरी का क्लास भी हमने बनाया है, जिसमें LIB करके वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर न्यू यूज करके लाइब्रेरी, जिसके अंदर 325 एंड R1 यूज किया. अब इसको समझिए, 300 मीन्स क्या हुआ, पहला जो है उसके अंदर तो क्या बनाया है, NB. NB मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ बुक्स, यानी 300 क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है. देन 20 इज द नंबर ऑफ मैगजीन्स एंड 5 इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर और R1 लिया है. R1 यानी क्या हो गया, हमारा जो पहला रूम क्लास है उसके अंदर जो डिटेल्स है, यानी क्या हो गई, वो जो रीडिंग रूम है हमारा, रीडिंग रूम की लैंथ, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ विंडोज आ जाएगी यहाँ पे. देन LIB डॉट डिस्प्ले, पूरा वो डिस्प्ले हो जाएगा और लास्ट में हम एंड करेंगे. तो इस तरह से दो क्लास बनाए हमने रूम और लाइब्रेरी का, और उसको कंटेनर नाम के मेन प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर हमने रिलेशनशिप क्रिएट की. तो कंपोजिशन और एग्रीगेशन यानी कि हैव अ रिलेशनशिप क्रिएट होगी. Observe the following points in code listing 8.5. In main method of class container, an object library of class library is created using a constructor with 4 arguments. Last argument is R1 of class room. Method display of class library is invoked using LIB object. अच्छा, one more thing, एक जो बात बनाएंगे भाई, यहाँ पे हमने 3 क्लास यूज की है. एक क्लास जिसका नाम है रूम, दूसरा क्लास बना जिसका नाम है लाइब्रेरी और तीसरा क्लास जिसका नाम बनाया हमने कंटेनर. अब आपको ये पता है कि अगर आपको जावा प्रोग्राम हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ये जो क्लास डिजाइन करे,
जब भी इस फाइल को सेव करना होता है हमको, तो जो हमारे क्लास का नाम होता है वो क्लास का नाम यूज करना है और पीछे .java एक्सटेंशन देना है। अब यहाँ पे तो 3 क्लास है, तो 3 में से कौन से क्लास का नाम दिया जाएगा यहाँ पे? फिर से याद दिला दूं मैं आपको कि जिसके अंदर हमारी मेन मेथड होगी, यानी कि मेन पार्ट होगा, मेन प्रोग्राम होगा, यानी कि वॉइड मेन जिसमें अंदर यूज करे, वो हमारा मेन क्लास बनेगा और उसी के नाम से सेव होगा। यानी ये जो प्रोग्राम आप अगर बना रहे हो तो इसको कौन से नाम से सेव करना पड़ेगा? container.java, तो इस नाम से ये सेव होगा। अब लाइब्रेरी क्लास की बात करें, इन लाइब्रेरी क्लास एन ऑब्जेक्ट रीडिंग रूम इज एन एट्रीब्यूट ऑफ क्लासरूम। Constructor with 4 arguments use last argument R of the classroom. Assign the values of room attributes using an assignment statement reading room is equal to R. पहले जो आर्ग्यूमेंट 4 आर्ग्यूमेंट्स है उसके अंदर क्या क्या है? एक तो नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ मैगजीन्स है, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स है, लास्ट जो है वो हमारा R यूज किया है रीडिंग रूम के लिए। Define display method which invokes display method of room class using reading room dot display. Not that display method is not a overridden. We have not used inheritance. ये देखिए ये overridden नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग क्लास में यूज किया है। Readers में use another name for this method, say show in class library and lib dot show in main method instead of lib dot display. यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई डिस्प्ले मेथड जो मेन प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहा है वो ओवररीडर हो रहा है, तो वो इनहेरिटेंस नहीं है, इसकी वजह से नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है, यानी कि मैचिंग जैसा हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो आप नाम चेंज कर सकते हो। वहां पे डिस्प्ले की जगह पे शो वर्ड यूज करो। इट इज डिपेंड ऑन यू। ये आपका आप मेथड बनाने वाले तो आपके ऊपर होगा। यूजर डिफाइंड मेथड है तो आप अपने हिसाब से उसका नाम रख सकते हो। In this scenario, reader may think, why not use inheritance? Why not to inherit library class from room class and 3 additional attributes? Not that the library is not the type of room. There is no either relationship between library and room. There is a hazard relationship. Library has a room used as a reading room. So we have used reading room of type room as an attribute of class library. याद रखिए लाइब्रेरी जो है वो रूम का टाइप नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी की जो है तो उसके अंदर और भी बहुत कुछ है। सिर्फ उसका एक रीडिंग रूम जो है ना वही हम यूज कर रहे हैं। बाकी लाइब्रेरी का जो पूरा पार्ट है वो तो पूरा अलग हो जाएगा, जिसके अंदर मेन क्या होगा, कितनी बुक्स है, कितने मैगजीन्स है, कितने, और उसके अंदर एक रीडिंग रूम है, बस उसके साथ ये रूम क्लास जो उसका रिलेशनशिप क्रिएट करना है। इसलिए इसके बीच में हैज अ रिलेशनशिप है, वो इनहेरिट नहीं है क्योंकि उसके अंदर से बनाया गया, ऐसा नहीं है। मीन्स इज अ रिलेशनशिप उसके बीच में नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग इनहेरिटेंस, वी आर यूजिंग ओनली हैज अ रिलेशनशिप। मीन्स कंपोजिशन और एग्रीगेशन दोनों में से कोई भी एक रिलेशनशिप क्रिएट इसमें हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये कंपोजिशन एग्रीगेशन रिलेशनशिप पता चल गया। फिर से मैं एक बार बता दूं हमने क्या क्या देखा है इस लेक्चर के अंदर। तो पहली तो बात बता दूं, हमने लास्ट टाइम इनहेरिटेंस का यूज किया था जिसके अंदर क्लासरूम बनाया है। तो क्लासरूम इज अ रिलेशन, क्योंकि रूम है तो रूम का ही पार्ट है ये क्लासरूम, ताकि लाइब्रेरी उसका पार्ट नहीं है। लाइब्रेरी इज अ डिफरेंट थिंग, इसलिए उसको हमने कंपोजिशन दिया था। सुपर क्लास यूज किया हमने इनहेरिटेंस के अंदर, इसके अंदर सुपर क्लास यूज करके सब क्लास जो उसके साथ जॉइंट हो रहा है उसमें डायरेक्टली आप इसको इन्वोक करवा सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज हमने यहाँ पे सीखी कि अगर ये जो वेरिएबल्स है, इंस्टेंस वेरिएबल्स है हमारे, उसके अगर आप प्राइवेट विजिबिलिटी रख देते हो तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, वहां पे एरर आ जाएगी। यानी सुपर क्लास में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। देन प्रोटेक्टेड मेंबर हमने देखे सुपर क्लास के, प्रोटेक्टेड मेंबर में आप ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा उसके अंदर, क्योंकि उसका पैकेज यूज होगा इसमें जो कि पार्ट होगा। हाँ, प्रोटेक्टेड में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो सुपर क्लास है तो उसके सब क्लास के अंदर आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो, प्रोटेक्शन उसको वहां पे सिर्फ मिलेगा। फिर हमने कंपोजिशन और एग्रीगेशन देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि लाइब्रेरी का एक क्लास हमने डिजाइन किया जिसके अंदर नंबर ऑफ बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रीडिंग रूम दिया। यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं है क्योंकि ये क्लासरूम नहीं है, पूरा पार्ट अलग है, इसलिए इसके बीच में आप रिलेशनशिप दे सकते हो, बट हैज अ रिलेशनशिप, जैसे उसके अंदर एक रीडिंग रूम है उसका। तो इस तरह से हमने इसका एक प्रोग्राम देखा, किस तरह से वर्किंग होगा, पूरा प्रोग्राम हमने देख लिया, समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो रहा है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट, अब लास्ट नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो 9 स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के दिन के लिए बस यहीं तक। आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।